Hello students, welcome to DNA classes. This video for class 10 science, and today I am going to start the chapter 6 life processes. This chapter is from your biology section. In class 10th you are having some chapters from physics, some from chemistry and some from biology. So first we will start with the chapter 6 life process. So first of all, meaning of chapter, what is life process? So life process means all those processes which are essential to sustain the life. तो हमने एक सिंपल सा मीनिंग देखा लाइफ प्रोसेस का कि वो सारी प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल टू सस्टेन द लाइफ. विदाउट दीज प्रोसेसेस लाइफ इज नॉट पॉसिबल. सो दोज प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस. नाउ सम एग्जाम्पल, ऐसे कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बिना कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता. लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट दीज लाइफ प्रोसेसेस. सो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम योर चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन. फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ वन मोर लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन. इट इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस without which organisms cannot survive. Now the next is circulation, and one more is excretion. There are some other life processes are also there, but these are the life processes in your syllabus, and we will discuss one by one all these processes. So first we will start with the life process, that is nutrition. So let's see what is nutrition and how it takes place. So our first life process, that is nutrition. Now first of all, meaning, what is nutrition? So the life process in which nutrients are taken in by the organisms. So the process, or you can write life process, in which nutrients are taken in by the living organisms. That is called nutrition. Okay, so the process in which nutrients are taken by the living organism, by the living bodies, that is called nutrition. Now one more very simple meaning of nutrition. इसके अलावा आप और कैसे nutrition को define कर सकते हैं या लिख सकते हैं? So one very simple way to represent the nutrition. So you can write nutrition equals to, we will write in the form of formula, we will write in the form of, you can say, equation. So nutrition का equation क्या है या formula क्या है? तो ये हमने nutrition का एक formula बनाया कि nutrition equals to intake plus proper utilization of nutrients. This is called nutrition. Clear? So nutrition means intake of nutrients and proper utilization of nutrients. Now you can make one more definition on this meaning of nutrition. That is, it is the life process in which there is intake of nutrients and there is proper utilization of these nutrients takes place.
Okay, so you can represent your answer, your definitions in different way. You can represent the meaning of nutrition in this different way also. So I will give you the idea how to represent your answers in a more attractive way in my classes. Okay, so one word we have used here, that is nutrition, means intake of nutrients and proper utilization of nutrients. Means हमने जो नया वर्ड इसमें यूज किया है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? लेट्स सी व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स. सो मूव ऑन. नेक्स्ट आवर टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिएंट्स. So what are nutrients? Nutrients are any organic or inorganic substance. So our term is nutrients. What is nutrients? So nutrients means any organic or inorganic substance, any organic or inorganic substance which provide nutrition, that is considered as nutrient. So nutrient may be organic, may be inorganic, but the condition is these substances provide nutrition to the body. So these substances are considered as nutrients. Now what is inorganic and inorganic, ये आप लोग मुझे बताएंगे आपको क्लियर है या नहीं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगी. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. आई थिंक डेफिनेशन से शायद उतना क्लियर नहीं हो, तो अपन एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स से हमको कई बार जो कंसेप्ट्स होते हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट्स. आई थिंक ये आप लोगों ने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें आती हैं, यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं सुना है तो अभी जो इसमें इसके जो मेंबर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. सो कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स ग्लूकोज, वेरी कॉमन न्यूट्रिएंट, दैट इज ग्लूकोज. After glucose we are having next very common, that is starch. One more is cellulose. ये सारे ही जो टर्म्स हैं वो आपको ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. सेल्यूलोज सेल वॉल का, प्लांट के सेल वॉल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. बिसाइड दिस वी आर हैविंग ग्लाइकोजन. सो स्टार्च जो है वो प्लांट रिजर्व फूड कंसिडर किया जाता है, और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल रिजर्व फूड है. मीन्स एनिमल्स अपने फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं. सो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च. इट इज सिमिलर टू स्टार्च, मीन्स इट इज ऑल्सो द स्टोरेज मटीरियल, स्टोरेज nutrient of animal. So sometimes it is also called animal starch. Okay, now so these are the examples of carbohydrate. Now the next category of nutrient, that is protein. Very important. Protein एग्जाम्पल्स. प्रोटीन सबने सुना है. एग्जाम्पल्स कुछ प्रोटीन के, तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, एल्ब्यूमिन. शायद ये थोड़ा सा कॉमन नहीं है ये इनके एग्जाम्पल्स. एल्ब्यूमिन जो एग का वाइट पोर्शन होता है उसमें प्रेजेंट होता है. सो वन एग्जाम्पल इज एल्ब्यूमिन. वन मोर इज ग्लोबिन प्रोटीन. वन मोर इज फाइब्रिन प्रोटीन. अब ये नाम बड़े अलग से लग रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको इनका लोकेशन बताऊंगी, कहाँ मिलते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको जल्दी याद रहेगा. सो एल्ब्यूमिन का मैंने आपको बता दिया है. ग्लोबिन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो नाम दिया गया, तो जो ग्लोबिन पीछे वाला वर्ड लिया गया, दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन प्रेजेंट इन द
pigment, that is hemoglobin. Hemo for iron and globin for the protein. फाइब्रिन प्रोटीन जो है या फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है, दैट इज प्रेजेंट इन ब्लड एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. यदि हमारे ब्लड वेसल्स में कट लग जाता है, डैमेज हो जाती है वो, तो उस कट पर क्लॉट बनाने का काम यही फाइब्रिन प्रोटीन्स ही करते हैं. Clear students? Now the next category of nutrient after protein, next is lipids. तो लिपिड शायद उतना कॉमन नहीं है, बट लिपिड्स इंक्लूड फैट एंड ऑयल. So fat and oil are included in lipid category. Now what is fat and what is lipid? तो फैट वो लिपिड होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सेमी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. एंड ऑयल्स वो होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, और यू कैन से दीज आर द मेंबर्स ऑफ लिपिड कैटेगरी. नाउ द नेक्स्ट category or next class of nutrients after lipid, that is vitamins. Very important class, that is vitamins. vitamins कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के. इसमें से जो विटामिन बी है, दैट इज द ग्रुप ऑफ मैनी विटामिन, सो वी राइट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. So vitamin A, vitamin B complex, vitamin C, D, E and K. So these are very important for the maintenance of and for the growth, normal growth of body. Now next category of nutrient, that is minerals. Now what is minerals? तो हमने ये जो definition में एक word add किया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स में बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. एक्चुअली जो इनऑर्गेनिक वर्ड हमने इसमें यूज किया है डेफिनेशन में, दैट इज फॉर मिनरल्स. दीज आर द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. दे मे बी मेटल्स, मे बी नॉन मेटल्स, दे आर मेटल एंड नॉन मेटल्स. सो बाय नेचर दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इसके पहले हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स बात किया है, whether it is carbohydrate, protein, lipids or vitamins, these are organic substances which provide nutrition. Mineral is inorganic substance which is necessary for the nutrition, which provide nutrition to the body. Now some examples, what are the minerals? So पहले कुछ metals देखते हैं जो हमारे living system के लिए required होती हैं. So जैसे Fe है, CO है, Mn है, Mg, Ca, calcium, so many others are also there. So Fe जैसे कि ब्लड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है. कैल्शियम जो है वो बोन्स के लिए रिक्वायर्ड होता है. ऐसे ही कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो कि मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोन से रिलेटेड हमारा अगला जो नॉन मेटल है, मिनरल है, दैट इज फॉस्फोरस. इसके अलावा आपने आयोडीन सुना है, Cl सुना है. मेटल्स में आप सोडियम भी लिख सकते हैं, NaCl, टेबल सॉल्ट के फॉर्म में हम इसको लेते हैं, है ना. पोटेशियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए किसी न किसी फॉर्म में रिक्वायर्ड होते हैं, और ये मिनरल्स के फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. So these are the examples, or you can say these are the category of nutrients which provide nutrition to the body. They may be organic or they may be inorganic substances. I think now nutrient and nutrition both is clear to all of you. So let's see कौन सा nutrient किस टाइप का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है. तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, अब सभी न्यूट्रिशन दे रहे हैं लेकिन किसका क्या रोल है हमारे बॉडी में, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में क्या काम करेगा या मिनरल बॉडी में क्या काम करते हैं, और व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी.
why they are essential or necessary to us. So let's see. So first we will take carbohydrate. So actually carbohydrate is considered as energy nutrient. It is energy nutrient. मतलब क्या हो गया, सबसे पहले जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी दैट इज कार्बोहाइड्रेट. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को यूज किया जाएगा फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. सो दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज एनर्जी न्यूट्रिएंट. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा रिजर्व एनर्जी सोर्स भी होता है. इट एक्ट एज अ रिजर्व एनर्जी सोर्स. ओके. इसके अलावा कुछ सेल कंपोनेंट्स को बनाने का काम भी कार्बोहाइड्रेट करता है. सो इट इज प्राइमरीली इट इज एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट. beside it is the reserve source of energy as well as it is the structural component of our body. Next is protein. प्रोटीन को बोला जाता है बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. इट इज कॉल्ड बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. Why building nutrient? Because mainly it is used for the structural purposes, means for the formation of new cells, for the formation of cell parts, for enzymes and different components of cells. So protein is mainly building nutrient. It is used for the building purpose. Now the next our category is lipid. Now lipid having the mixed role, it acts as a energy nutrient as well as building nutrient. So if carbohydrate is not available, in that condition it provide energy to the body as well as it is used for the synthesis, for the formation of various substances in the cell, various cell parts or cell components in the body. So it is the energy nutrient, it is the structural component of cell and it also serve as reserve energy source. ये रिजर्व एनर्जी सोर्स के फॉर्म में भी हमारे स्किन के नीचे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ ये डिपॉजिट रहता है और जब भी बॉडी में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट टाइम इट इज यूज्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. Clear? Now the next category is vitamins. So vitamins का mainly जो role है that is regulation and maintenance. Regulation and maintenance का काम जो है वो ये nutrients करते हैं. तो regulation and maintenance same function is of minerals also. So both vitamins and minerals, they are responsible for the regulation and maintenance of normal cellular activities or normal functioning in the body. Okay, so these are the roles of different nutrients in our body. Now the sources, आपको मालूम है sources क्या क्या हैं, but क्विकली हम लोग देख लेते हैं किस न्यूट्रिएंट का क्या सोर्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आपको सारे ही ग्रेन्स में मिलेगा बट स्पेशली इट इज रिच इन राइस, पोटैटो, वीट. तो ग्रेन्स मेनली सोर्सेस होते हैं एज वेल एज बिसाइड ग्रेन्स फ्रूट जूसेस आर दी सोर्सेस जिसमें भी स्वीटनेस होता है. एक्चुअली उसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को बिलोंग करता है. तो फ्रूट्स, जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो में होता है स्टार्च, राइस में स्टार्च होता है. दैट बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोटीन. प्रोटीन के सबसे अच्छे जो सोर्सेस हैं दैट इज पल्सेस. दालें बहुत अच्छा सोर्स है, सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है, मिल्क, एग, मीट, these are the richest source of protein. Next is lipids. तो lipids
आपको मालूम है एनिमल फैट, वेजिटेबल फैट, ऑयल्स, दीज आर द सोर्सेस ऑफ लिपिड्स। सीड्स भी होते हैं कुछ ऐसे, जैसे आलमंड है या ग्राउंड नट है, दीज आर ऑल्सो रिच इन लिपिड्स। डिफरेंट फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ लिपिड्स। नाउ द नेक्स्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दोनों का ही जो सोर्स है दैट इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दे आर फाउंड इन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो इसीलिए ये दोनों ही चीज़ें आपकी डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। सो फॉर टुडे यही एंड करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, कितना यूजफुल लगा, आप मुझे कमेंट करेंगे, अपने फीडबैक देंगे। एंड whenever it will be possible I will start regular classes also, but जब तक regular classes start नहीं होती हैं तब तक हम इस तरीके से अपनी जो भी स्टडीज़ है उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके कमेंट मुझे बताइएगा, आपकी फीडबैक मुझे दीजिएगा। ओके।